The open gate, khula darwaza, brilliant but broken family lives in a house where the doors are technically open but the minds act like cages they cannot be escaped. The protagonist, the observer, highly intuitive, struggling with information overload, psychology, astrology, spirituality. She sees the exit but her legs feel heavy. The silent chef Mamu, a man with a professional grade cooking skill who downed his depression in a secret alcohol, is the master chef of the taste who has lost the taste for the life. The professor, ma'am, the mirror, she represents the world that hides its pain behind a mask of duty. The mouse metaphor, a scene where a mouse is trapped in a room, the protagonist opens the door wide, but the mouse keeps hitting the walls in the dark corner. It is a visual representation of family mental state. The bathroom anxiety, a raw honest scene. The protagonist has brilliant thought about God or science, but her body reacts with anxiety running into the washroom. They show the physical toll of deep thinking. The beautiful filter, a split screen on one side, you are saying the truth, looking tired, real. On the other, a beautiful actor say the same word with a perfect lighting. It asks the audience, why do you only listen to the truth when it's pretty? So the raw logic. If you want to start on a YouTube podcasting. Last night I opened the door for a mouse trapped in my room. The exit was right here, but it kept running back into dark corner. I realized then we are not just trapped by walls, we are trapped by own map of the world. Today I'm looking at my own home, my family, and my own anxiety through the eyes of that mouse. Describe my mamu's cooking. Use sensory word. The smell of the food versus the smell of the alcohol. He has the hands of professional chef, but a mind that convinced there is no kitchen left for him. Like the mouse, he sees the gate, but he doesn't believe it leads anywhere. Speak honestly about the bathroom trips and my anxiety. My mind is racing with the astrology, psychology, spirituality, but my body is reacting with the fear. Why does knowledge feels like a weight instead of wings? In my psychology books, they talk about how if animal is told no enough times, it stop trying even when the no is gone. My family is not lazy, they are conditioned. We are living in a script written by old failures. We clap for actors who show pain because they make it look beautiful. But when the pain is in your own living room, unfiltered and messy, people call it a lecture. Why do we only value the truth where it performs? The mouse didn't leave because it didn't recognize the light as an exit. Today, your only job is to recognize to one exit in your life. It doesn't mean you have to run through it yet. There, look at it, acknowledge that door is not open. There was a mouse in my room last night. I opened the gate for her. I gave her the rasta, but would not leave. She kept hitting the same wall over and over. She had the legs to run, but she didn't have the map in her head to see the exit. I realized then when we are exactly the same. When we cry for a freedom, but when the gate opens, we stay in the corner because the corner is all we know. I look at my Mamu, he has practical knowledge that people with thousands to learn. In the kitchen, he is a king, but at night, he drowns that kingdom a little bit of alcohol. People ask, where does the money come from? The drink? If there is no income, they miss the point. The point is a sequence of problems. When you are in a depression, you are not buying a drink. You are buying a few hours where you do not feel like a trapped mouse. He is a professional actor in a tragedy he never signed up to write. I have this book, Psychology, Astrology, Spirituality. My professor, ma'am, she stay quiet. She has a world moving inside her, but she doesn't show it. Why is it that we're an actor stumbling like a Nagarjun son cries on a screen? We call it an art. We give them awards, but when I cry because my house is suffocating, or when I have to run to the washroom because my anxiety is pulling at my stomach, people call it a lecture, or they say I'm trying to be great. The world only loves the truth when it's dressed up in a costume. My struggle is hard to I tell the truth without the costume. I'm going to use these books not just for an exam result but as a key. If the mind is the cage, then the gyan has to be the locksmith. I'm starting this podcast not because I have all figured out, but because I am standing at the gate. I'm scared to walk through it, just like that the mouse. But I am documented the walk because maybe if you hear my voice, you will realize your gate has been open the whole time too. भगवान म्यूजिक और मेरे घर का सच, हम सब सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, है ना। हमें लगता है कि कोई आएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा और सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये है कि सोल्यूशन बैठकर बातें करने से नहीं आता। पर बात करने के लिए क्या चाहिए? एक ढंग का घर, थोड़ा पैसा और ढंग का माइंडसेट। जब तक पैसा और माहौल नहीं बदलेगा तब तक हम सिर्फ एक पिंजरे में बंद चूहिया की तरह गोल गोल घूमते रहेंगे। एक सिंगर तब बनता है जब उसके टैलेंट को म्यूज़िक के साथ मिलाया जाता है। बिना म्यूज़िक के वो सिर्फ चिल्ला रहा है। मेरी ज़िंदगी में वही कमी है। मेरे पास थॉट्स हैं, मेरे मामू के पास कुकिंग का हुनर है,
मेरे पास म्यूज़िक नहीं है, पर वो प्लेटफ़ॉर्म, वो सही लोग और वही इनकम जो हमारे हुनर को चमका सके। मैं आज उस राइट पर्सन और राइट जॉब की तलाश में हूँ जो इस दर्द को एक सुर दे सके। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है क्योंकि वो दिखते ही नहीं है, पर क्या म्यूज़िक दिखता है आपको? वो महसूस होता है। भगवान खुद चल कर नहीं आएंगे आपका रास्ता साफ़ करने, वो आपको इनपुट देंगे, आउटपुट आपको खुद बनना पड़ेगा। मैंने अपने दुःख को छुपाऊँगी नहीं, मैं इसे दिखाऊँगी कि एंग्ज़ायटी होती है, पैसा ज़रूरी है, क्योंकि तब तक दर्द दिखेगा नहीं जब तक उसका इलाज कैसे होगा। हमारा दिमाग ही हमारा पिंजरा बन चुका है। हमें रास्ता दिख रहा है पर पैर वहाँ तक चल नहीं रहे, क्योंकि हमें लगता है कि हम भाषण दे रहे हैं, पर ये भाषण नहीं है, ये मेरी रिसर्च है, मेरी यूट्यूब पर, मेरी पॉडकास्ट पर। सच बोलूँगी जो लोग सुनने से डरते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट ही वो चीज़ है जो एक मरने वाली चीज़ में जान डाल देती है। सब कहते हैं कि सुनने के लिए कान चाहिए, पर मैं कहती हूँ सुनने के लिए माइंडसेट चाहिए। म्यूज़िक जब बजता है तो कान तो सबके पास हैं, पर हर किसी को सुकून नहीं मिलता। क्यों? कई बार किसी को वो म्यूज़िक तेज़ लगता है, कभी स्लो लगता है ना? क्योंकि हम कानों से नहीं, अपने दिमाग के पिंजरे से सुनते हैं। आज मैं अपना दिमाग खोलकर आपके सामने ही रख रही हूँ, ये देखने के लिए कि मेरे दिमाग का रास्ता आपके घर तक जाता है या नहीं। कई बार मैं देखती हूँ जो पहले स्ट्रगल था वो वैसा स्ट्रगल नहीं है, पर मेरा स्ट्रगल वो परमानेंट स्ट्रगल बन चुका है। दूसरी ओर दलजीत दोसांझ जो है, जो काफ़ी सॉन्ग्स डालते हैं, वो महसूस कर रही हूँ। फ़र्क क्या है कि सुर का नहीं, सुंदरता क्या है। एक आर्टिस्ट वही काम करता है जो हम रोज़ करते हैं, पर उस पर एक स्पॉटलाइट डाल देते हैं। हर रोज़ डॉगी को पानी पिलाती हूँ, हर रोज़ ऑब्ज़र्व करती हूँ, रोज़ रोती हूँ। मेरे पेरेंट्स के लिए वेस्टेज है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइटनिंग नहीं है, इसमें म्यूज़िक नहीं है, इसमें एडिटिंग नहीं है। जब एक क्रिएटर वही पानी पिलाने की वीडियो बनाता है तो लोग उसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, जब मैं करती हूँ तो लोग उसे कहते हैं टाइम पास है। सो मेरा काम वेस्टेज नहीं है, बस मेरी शूटिंग में वो ब्यूटी मिस हो चुकी है जो दुनिया देखना चाहती है। द डांस इन माई माइंड। मेरा दिमाग डांस सीख जाता है, म्यूज़िक सीख जाता है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। बट जैसे कि ये नोरा फतेही के लिए बिजनेस है, पर मेरे लिए अभी सिर्फ थॉट है। प्रॉब्लम शूटिंग की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं शुरू करने से पहले डिस्ट्रैक्शन में खो जाती हूँ। स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वीडियो मैं डालने से डरती हूँ, पर सच ये तो है कि स्ट्रेस ही मेरी स्क्रिप्ट है। आर्टिस्ट का काम है तराशना। अगर मैं दिमाग में एंग्जाइटी है तो उसे छुपाऊंगी नहीं, अगर उसे सुंदर बनाऊंगी, लिखूंगी कि कैसे एक एंग्जाइटी वाला दिमाग भी दिलजीत दोसांझ के गानों पर डांस कर सकता है। सिंपल काम करूंगी, खाना, उठना, रोना, इस पर एक क्रिएटर की नज़र से देखूंगी, सिंपल इंसान की नज़र से नहीं। द पॉइंट इज़ दैट कि एक तरफ दिलजीत दोसांझ हैं जिन्होंने दुनिया सुनती है, देखती है और पूछती है, और हर एक मूव एक बिज़नेस है, हर एक आर्ट है। दूसरी तरफ मेरे नेबर्स हैं जो स्ट्रगल से बाहर उठ कर आए हैं, और शायद मैं वहीं स्ट्रगल में हूँ। शायद कल भी मेरा वैसा ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। इन दोनों के बीच में मैं खड़ी हूँ। मेरा हेल्थ हाथ में एक डॉगी को पानी पिलाने के लिए होता है, जो कि बहुत सुंदर है, पर दुनिया उसे वेस्टेज भी कई बार कह देती है, क्योंकि सेम चीज़ है। दुनिया को सच नहीं चाहिए, दुनिया को एक सुंदर सच चाहिए। जब एक क्रिएटर वही काम करता है तो रोज़ करते हैं, खाना बनाना, ऑब्जर्व करना, एंग्जाइटी, इमोशन जाना, तो उसे लाइटिंग और म्यूज़िक से एस्थेटिक बना देता है। वो आर्टिस्ट है, इसीलिए वो तराशना और कार्विंग जानता है। मैं भी बस सब वही कर रही हूँ, पर मेरे पास सिर्फ रॉ मटेरियल है। मेरे पेरेंट्स के लिए वही काम नहीं, भगवान के लिए ये बड़ी इबादत नहीं है, और मेरे लिए दैट इज़ लोनलीनेस। मुझे समझ आ गया कि अगर सिंगर को म्यूज़िक चाहिए तो मुझे सिर्फ लफ्ज़ चाहिए। मेरा दिमाग डांस सीख लेता है, म्यूज़िक सीख लेता है, साइकोलॉजी समझ लेता है, पर जब शूटिंग की बारी आती है तो एंग्जाइटी रास्ता रोक देती है। कैसे शुरू करूँ, कहाँ से करूँ, टॉपिक क्या होगा? जब टॉपिक तो मेरे सामने ही बिखरा पड़ा है, पर मेरी एंग्जाइटी मेरी स्क्रिप्ट है। सो मेरे घर का माहौल ही मेरा सेट है। मैं महान बनने के लिए नहीं लिख रही हूँ, मैं भाषण देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि मैं अपने रॉ दुःख को सुंदर कहानी में बदल सकूँ, ताकि मैं जब बोलूँ तो लेक्चर ना सुने, वो म्यूज़िक सुने, क्योंकि कान तो सबके पास है, पर कहानी सुनने वाला दिमाग बनाना पड़ता है। मैं वही दिमाग बना रही हूँ। सो द पॉइंट इज़ दैट कई बार लोग कहते हैं कि कुकिंग की करोड़ों वीडियोज़ हैं, तेरे एक वीडियो से क्या होगा? सच कहूँ तो एंग्जाइटी मुझसे यही सवाल पूछती है। एंग्जाइटी इसलिए नहीं है कि मुझे काम नहीं आता, एंग्जाइटी इसलिए है कि रास्ता ही नहीं दिख रहा। जब घर में सब हारे हुए लगे तो जीतने की कोशिश भी गुनाह लगती है। ऐसा लगता है कि कोशिश करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कुकिंग की करोड़ों वीडियोज़ हैं, पर वो वीडियोज़ रेसिपीज़ हैं, रेसिपीज़ नहीं बेच रही हूँ, इंसान की खामोशी दिखा रही हूँ। करोड़ों लोग हैं जो खाना बनाते हैं, पर कितने लोग हैं जो उस खाने के पीछे का डिप्रेशन और अल्कोहल का सच बोलते हैं? लोग खाना देखने नहीं आएंगे, लोग ये देखने आएंगे कि क्या मेरे जैसा और भी है जो इस भीड़ में अकेला है। द पॉइंट इज़ दैट कि डर है कि रास्ता बहुत लंबा है। राइटिंग रास्ता काटने के लिए नहीं है, रास्ता सहने के लिए है। जब लिखती हूँ तो वक्त जो मुझे काट रहा है वो मेरी एसेट बन जाता है। अगर मैं सिर्फ रोती रहूँगी तो वो वेस्टेज हैं, पर अगर मैं इस रोने पर एक स्क्रिप्ट लिख दूँ तो वो कंटेंट है।
जब पेपर पर उतरता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जानती हूँ कि रियल सोल्यूशन पैसे से बैठकर बात करने से आएगा, पर एक हारे हुए दिमाग से बात नहीं की जा सकती। मुझे अपने दिमाग को विनर माइंडसेट में लाना होगा। राइटिंग मेरी प्रैक्टिस है, जैसे सिंगर रियाज़ करता है, सच बोलने की रियाज़ कर रही हूँ, ताकि जब सामने बैठूँ तो मेरी आवाज़ में वजह हो। ठीक है। टीवी पर नागिन का नया सीज़न आ गया, वही दुख, वही बदला, वही कहानी। लोग पूछते हैं बोर नहीं होते? पर सच तो ये है कि दुनिया को नया नहीं चाहिए, दुनिया को वही पुराना दर्द एक नए चेहरे में चाहिए। एक्ट्रेस बदल जाती है पर उसका सफ़र वही रहता है। मैं सोचती हूँ क्या मेरी ज़िंदगी भी एक सीज़न है? क्या मेरा टाइम निकलने के बाद कोई मेरी जगह खड़ा होकर एंग्ज़ायटी महसूस करेगा? सबसे बड़ा डर एक्टिंग का या स्क्रिप्ट का नहीं है, सबसे बड़ा डर है कि टाइम का। हम कहते हैं कि उसका टाइम निकल गया, जैसे कोई एक्सपायर मेडिसिन हो। बिल्कुल सही बात है, मेरे मामा जी का टाइम निकल गया या उनका सफ़र ही ऐसा था। अगर मैं वही दर्द दिखा रही हूँ, हज़ारों सालों से दिखाया जा रहा है, पर फ़र्क ये है कि दर्द एक्टिंग नहीं है, ये मेरा लाइव टेलीकास्ट है। अगर मैं इस वक्त नहीं बोली तो मैं अगले सीज़न की बस एक पुराने क्लिप बनकर रह जाऊँगी। शो में एक्टर्स को पता होता है कि स्क्रिप्ट कब ख़त्म होगी, मुझे नहीं पता कि वहाँ दुख दिखाने के पैसे मिलते हैं, यहाँ दुख दिखाने पर लेक्चर सुनने को मिलते हैं। पर एक बात तय है कि कहानी तब तक नहीं रुकती जब तक एक्टर परफॉर्म करना बंद ना कर दे। अगर मैं वही पुराना दुख दोबारा दिखा दूंगी तो इसलिए क्योंकि वो दुख अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ, मैं वही पुराना सीज़न हूँ। पर इस बार मैं डायरेक्टर खुद हूँ। लोग कहते हैं कि देखते हैं कि क्या होगा, मैं कहती हूँ कि देखने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा। अगर मैं आज रास्ता नहीं दिखा पा रही हूँ तो शायद इसलिए क्योंकि मैं अभी तक दूसरों के सीज़न देख रही थी। आज शूटिंग मेरी है, स्क्रिप्ट मेरी है और ये है टाइम मेरा। जब तक मैं बोल रही हूँ मेरा टाइम ख़त्म नहीं हुआ। सो द रोड विद नो एंड, मैं बोल रही हूँ पर मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कभी रास्ता दिखता है, कभी सिर्फ धुंध दिखती है। लोग पूछते हैं कि टॉपिक क्या है, मैं कहती हूँ कि मेरा दिमाग ही मेरा टॉपिक है। मेरे अंदर इतनी बातें भरी हुई हैं कि जब तक मैं इन्हें निकाल ना दूँ ये मुझे एंड पॉइंट नज़र ही नहीं आएगा। क्या ये टाइम वेस्ट है या एक दिमाग की सफाई है? स्ट्रगल, डायरेक्शनलेस एनर्जी। ऐसा लगता है कि मैंने अपने दिमाग में इतना लंबा रास्ता बना कर रखा था कि चलते चलते थक गई हूँ, मेरी मंजिल नहीं आई। मेरी वर्डिंग कभी भी कहीं से शुरू हो जाती है, कभी मामा जी के अल्कोहल से, कभी दिलजीत जी का गाना, कभी वो चूहा जो दरवाजे खुलने पर भी नहीं निकल रहा, कभी वो भाषण। ये मेरा दिमाग है जो खुद को खाली कर रहा है ताकि वो नया देख सके। जब तक ग्लास भरा होता है उसमें नया पानी नहीं डाला जा सकता। शायद इसलिए मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा, क्योंकि जगह ही नहीं है। मैं लिख रही हूँ ताकि मैं खाली हो सकूँ, मैं बोल रही हूँ ताकि वो पुराने थॉट्स जो नेगेटिव और हारी हुई फीलिंग देते हैं वो बाहर निकल सके। जब दिमाग खाली होगा तभी तो रास्ता दिखेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बोलना शुरू करते हो और आपको पता ही नहीं होता कि आप टॉपिक से कब भटक गए? शायद हम भटकते नहीं हैं, हम बस अनफिल्टर्ड होते हैं। और आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ स्क्रिप्टेड है वहाँ अनफिल्टर्ड चोज़ ही सबसे बड़ा सच है। आज बसंत पंचमी है, चारों तरफ म्यूज़िक है। लोग कहते हैं म्यूज़िक सुकून है, पर मेरे लिए म्यूज़िक दुश्मन है। जब म्यूज़िक बजता है मैं सब भूल जाती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे जॉब ढूँढनी है, मुझे फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है। मुझे म्यूज़िक मेरे दुःख को मिटाता नहीं है, बस उसे पॉज़ कर देता है। और जब म्यूज़िक रुकता है तो वहीं खड़ी रह जाती हूँ, एकदम ही आगे नहीं बढ़ पाती। द स्ट्रगल अर्ली मॉर्निंग एस्केपिज़्म। सुबह उठते ही एस्केपिज़्म शुरू हो जाता है। मेरा माइंड मुझे रियलिटी से बचाने के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूँढता है। सड़क पर निकलती हूँ तो म्यूज़िक का शोर मुझे याद नहीं रहने देता कि मैं निकली हूँ या थी। रिसर्च ये बातें राइटिंग में इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं फाइनेंस अर्न कर सकूँ, पर मेरा दिमाग मुझे बार बार एक ही कहानी में उलझा देता है। एक तरफ मेरा माइंडसेट है जो इतना डीप सोचता है कि इस टॉपिक पर इतना बोल ही नहीं सकता और कोई, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी तरफ मेरी ज़रूरत है पैसा, करियर, स्टेबिलिटी। इस स्ट्रगल को विजिबल बनाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए उसका दिमाग ही सबसे बड़ा जेलर कैसे बन जाता है। ये भाषण नहीं है, मेरी सर्वाइवल की लड़ाई है। इससे बाहर निकलना चाहती हूँ। विजिबल बनने के लिए रास्ता क्या है? शायद रास्ता है कि इस डिस्ट्रैक्शन को अपना वर्क बना लूँ। अगर म्यूज़िक मुझे अगर नहीं भूल रहा तो मैं लिखूँगी उसने उसने क्या बुलाया। अगर सुबह डिस्ट्रैक्शन होती है तो मैं उस डिस्ट्रैक्शन को रिकॉर्ड करूँगी। मैंने अपने दुश्मन को अपने स्क्रिप्ट विलेन बना लूँगी। Early morning drab. Close up of an alarm clock or phone showing 6 a.m. The room is quiet. I see the narrator face tired, eyes already racing with thoughts. Audio. Heavy silence, then the sound of phone clicking voiceover. सुबह उठती एक जंग शुरू होती है। मैं उठती हूँ रास्ता ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, करियर बनाने के लिए, पर मेरा दिमाग पहले से कहीं और निकल चुका है। Weapon of music. Narrator puts on headphone. The scene of shift from messy room to dreamlike blur visual. A sudden burst of high energy music, Diljit style beat, but muffle as if underwater voiceover. म्यूज़िक मेरा सुकून नहीं है, ये मेरा एस्केपिज़म है। लोग कहते हैं कि म्यूज़िक सोल को हील करता है, पर मेरे लिए एक नशा है जो मेरी जिम्मेदारियाँ भुला देता है। जैसे ही पहला सुर बजता है
मैं भूल जाती हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट में क्या और मेरे मेरे कल के प्लान्स क्या थे। नरेटर वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड, पीपल आर मूविंग फास्ट बट शी स्लो, लॉस्ट इन द थॉट, टेक्स्ट ओवरले अपीयर ऑन द स्क्रीन लाइक अ साइंटिफिक लेबर्स। साइकोलॉजिकली मेरा माइंड मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। रियल लाइफ इतनी कड़वी है कि मेरा दिमाग म्यूज़िक और थॉट्स की फेक रियलिटी बना लेता है। इसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, पर मेरे लिए सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मैं इतनी रिसर्च किसके लिए कर रही हूँ? ताकि मैं दिखा सकूँ कि दिमाग ही दुश्मन बन जाए तो इंसान अपने घर के खुले दरवाजे से भी बाहर नहीं निकल पाता। नरेटर सिटिंग एट अ टेबल विद अ बुक्स बट स्टार्टिंग एट अ डॉगी बॉल और अ मामा इन द बैकग्राउंड। मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, भगवान को लगता है कि मैं भटक गई हूँ, पर मैं सिर्फ लोड कम कर रही हूँ। जब तक ये सारे थॉट्स बाहर नहीं आएंगे, मुझे करियर का रास्ता नहीं सुनेगा। मैं फील होती हूँ हर सुबह ताकि मैं एक दिन हमेशा के लिए जीत सकूँ। For someone in a stressful home environment, the brain view goal setting as a threat because it causes anxiety. To save you, the brain trigger a craving for music or deep thoughts to numb the reality. We repeat struggle like a TV season because we do have changed the director of our mindset. The only way to the visible document the choice. Don't wait for a perfect video. Film the distraction, write the confusion. सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी ऑब्जर्वेशन, द रॉ डाटा कलेक्टर। ये वो हिस्सा है जब कई बार मैं अपने मामों को देखती हूँ, अपने नेबर्स को देखती हूँ या घर की फाइनेंशियल स्ट्रगल को ऑब्जर्व करती हूँ। दैट इज़ अ क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। बिना जज किए बस सच को ऑब्जर्व कर रही हैं। रिसर्च का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस, मीडिया हब। डिपार्टमेंट में यूट्यूब, दिलजीत दोसांझ, नागिन सीजन एक्टर्स घूम रहे हैं। रिसर्च टर्म कंपैरेटिव एनालिसिस, अपनी लाइफ को मीडिया और पॉप कल्चर से कंपेयर करती हैं। दिलजीत का स्ट्रगल वर्सेस मेरा स्ट्रगल। डिपार्टमेंट अपनी कहानी को सुंदर बनाने का काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरनलाइजेशन, इनर वॉइस। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहते हैं। ये ढूंढते हैं कि हम ट्रैप्ड क्यों हैं, माउस लॉजिक लगा के। बिहेवियरल साइकोलॉजी, एंथ्रोग्राफी। आप ये रिसर्च कर रही हैं कि इंसान रास्ता खुला होने पर भी बाहर क्यों नहीं जाता। म्यूज़िक सुनना, सब भूल जाना, डिस्ट्रैक्शन में चले जाना। कॉग्निटिव डिफेंस मैकेनिज्म, जब रियलिटी बहुत कड़वी होती है तो दिमाग म्यूज़िक को एक शील्ड की तरह यूज़ करता है ताकि वो सर्वाइव कर सके।